Hello मेरे प्यारे बच्चों, welcome to the Gen Next Chemistry Classes channel. It is our fifth lecture on atomic structure. In this lecture, we are going to continue the Bohr's model of an atom. In previous lecture, we have completed the theory part of Bohr's model, that is postulates of Bohr's model. In this one, we will calculate the radius of various orbits, velocity of electron in different orbits, energy associated with electron or different orbits, that is kinetic energy, potential energy and the total energy. अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, तो आप इसलिए पिछला लेक्चर पहले देख लीजिएगा. एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर योर आईआईटी, जेईई एंड नीट एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड. चलिए शुरू करते हैं विद रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स. पिछले लेक्चर में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी. वन वाज NH by 2 pi. दिस वाज इक्वल टू mvr, दैट इज एंगुलर मोमेंटम. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास था 1 by 4 pi epsilon naught ze square divided by r square. This was equal to mv square by r. This is our second equation. In this equation we have these epsilon naught is constant, z is the atomic number of an atom, this is charge that is constant, we have radius, this pi is constant, h is constant, n is the orbit number. तो यहां से भी this m is constant, v and r are there, v is velocity, r is the radius. तो यहां से हम करेंगे क्या, this velocity will cancel out, तो बचता है हमारा radius. Radius will calculate with respect to orbit number and the atomic number of an atom. चलिए हम शुरू करते हैं. स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन. जब हम पहली इक्वेशन की स्क्वायरिंग करेंगे, देन डिवाइडिंग इट बाय सेकेंड. चलिए स्क्वायरिंग करते हैं. दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. दिस इज पाई स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर. दिस इज v स्क्वायर. दिस इज r स्क्वायर divided by 1 by 4 pi epsilon naught ze square divided by r square. Here we have mv square divided by r. We'll continue here. This is, यहां से v square आप कैंसिल करेंगे, this m and this square will cancel out. तो हमारे पास क्या आता है, this is n square h square divided by 4 pi square, this one. उसके बाद क्या आएगा, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे. दिस इज 4 pi epsilon naught into r square divided by ze square, this one. This is equal to, यहां से हमारे पास क्या बचता है, this m into r square and this r, it will be multiplied here. This r square and this r square will cancel. This 4 and this 4 will cancel. This square, this pi will cancel. So we will have n square h square, this epsilon naught divided by, we will have pi ze square. ये m हम यहां कर देंगे, this m equal to r. इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं दिस r इज इक्वल टू, इसके साथ हम कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, दिस h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई इंटू z इंटू e स्क्वायर इंटू m. इस z को हम यहां कर देंगे, दिस इज n स्क्वायर, दिस इज z. दिस इज द रेडियस ऑफ एन nth ऑर्बिट. Radius of nth orbit is h square epsilon naught divided by pi into e square into m into n square divided by z. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. कभी कभी जेईई या आईआईटी में इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना बहुत जरूरी है. हम इसका शॉर्टकट लिखते हैं. ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनके हम वैल्यूज जब पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बी 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इन एंगस्ट्रम्स. एटम्स की रेडियस, ऑर्बिट्स की रेडियस बहुत कम होती है, इन एंगस्ट्रम से हम एक्सप्रेस करेंगे. 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स. तो ये हमारा फार्मूला बन के आया है. चलिए इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम. फॉर हाइड्रोजन एटम चलिए Z is 1 for hydrogen atom. If we have n equal to 1, what will be the R? R1 will be equal to 0.529 into n square, that is 1 square, divided by Z, that is 1 again. तो ये यही होगा, this is in angstroms. R1 is equal to 0.529 in angstroms. And this is called as the Bohr radius.
ये आप याद रखेंगे. दिस इज कॉल्ड बोहर रेडियस ऑल्सो. कभी कभी इसे हम और नॉट से भी दिखाते हैं. इफ वी हैव n इक्वल टू 2, then this R2 will be equal to 0.529 n square, that is 2 2s are 4 times, that is again the same. This is in angstroms. That means radius of the second orbit of hydrogen is 4 times the radius of the first orbit of hydrogen. ये चीजें आप अच्छे से नोट्स करेंगे. If we have n equal to 3, R3 will be equal to 0.529 into 9. 3 3s are 9. This is 9 times the first orbit. Radius of this is 9 times the first orbit here. So next we will apply this for helium. Helium के लिए तो as such Bohr's model हम apply नहीं कर सकते, because helium contains 2 electrons. This Bohr's model is applicable only for hydrogen and hydrogen like species. तो यहां हम क्या करेंगे, we will ionize this helium into He plus, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालेंगे. Now this species contains only 1 electron. That means species containing only 1 electron, these Bohr's model will be applicable then. तो यहां भी Bohr's model अब applicable होगा. और जो हीलियम है इसके लिए Z होगा 2 and it is N if it is 1. तो हमारे पास क्या आने वाला है, this R1 will be equal to 0.529 into n square, n is 1, divided by Z, that is 2. So this is the radius of first orbit of helium plus ion, He plus ion. That means this radius is half of the radius of first orbit of hydrogen. ये रिजल्ट भी आप अच्छे से याद रखेंगे. ये जो इक्वेशन है इसका आप रखेंगे नाम थर्ड इक्वेशन, और ये आप यहां लिखेंगे. यहां मैं बोर्ड पे करता हूं, आप इसे थर्ड लिख लीजिए. R nth is equal to H square epsilon naught divided by pi E square M into M square divided by Z. ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया. नाउ इफ n इज इक्वल टू 2, अगर हमारे पास यहां n 2 है तो R2 क्या होगा, R2 विल बी 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z. n स्क्वायर क्या है, 2 2s are 4 डिवाइड बाय Z क्या है, दैट इज 2. दिस 2 and 2 will cancel. That means this R2 will be twice 0.529 in angstroms. That means radius of the second orbit of He plus will be twice the radius of the first orbit of hydrogen. इस तरह से आप कंपेयर अच्छे से करेंगे. आप थर्ड का भी निकाल सकते हैं. चलिए थर्ड भी निकालते हैं. R3 will be equal to, if n is equal to 3, 0.529, आपका n स्क्वायर क्या आएगा, 3 3s are 9 and divided by Z, that is 2. तो ये आपका वैल्यू आने वाला है इन एंगस्ट्रम्स. तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं. यू कैन अप्लाई दिस फॉर द अदर स्पीशीज एज वेल. लाइक वी हैव हीलियम के बाद आपका लिथियम है. लिथियम पे तो एप्लीकेबल नहीं है, बट Li+2 पे एप्लीकेबल होगा. बेरिलियम पे नहीं है, लेकिन बेरिलियम 3+ पे एप्लीकेबल होगा बोहर्स मॉडल. तो इन स्पीशीज के लिए भी आप रेडियस निकाल सकते हैं. चलिए हम आगे चलते हैं. फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. As the electron is revolving around the nucleus, that means it is possessing some velocity. तो velocity को हम निकालेंगे. फॉर्मूला हम कौन सी यूज करने वाले हैं, वही सेम एक्सप्रेशन. दिस mvr is equal to nh by 2 pi and this velocity is equal to nh by 2 pi into m into this r. This velocity will be equal to nh divided by 2 pi into m this r. ये r हम यहां से पुट करेंगे. चलिए हम पुट करते हैं. h square epsilon naught divided by pi e square m into n square divided by z. This velocity will be equal to what? It will be nh divided by 2 pi m into h square epsilon naught n square. ये हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका. This will be pi e square m into z. So this velocity will be equal to, velocity किसके बराबर होगा, आप यहां से जो कैंसिल होता है वो हम कैंसिल करेंगे. This mass will cancel with this one. Pi कैंसिल होगा यहां से. This square will cancel with this and this square will cancel with this one. तो बचता क्या है हमारे पास, e square divided by this 2
पाई कैंसिल हो गया, दिस इज h and epsilon naught into z divided by this n. This is the velocity of electron in the nth orbit. तो वेलोसिटी हमारे पास आ गया e स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट, ये सारा कांस्टेंट है तो इसका हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो v nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू, इसका जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं दिस इज 2.188 हम लिख सकते हैं इनटू 10 रेज्ड पावर 6 z by n meters by second. This is the value of velocity of electron in the nth orbit. तो हम अप्लाई करेंगे अब हाइड्रोजन एटम पे। पहले हाइड्रोजन एटम का z हमें पता है दैट इज 1, इसका n जो होगा इफ इट इज 1 तो v1 विल बी इक्वल टू व्हाट 2.18 into 10 raised power 6 into this z is 1, n is 1, that means this is the velocity. So velocity of electron in the first orbit of hydrogen is 2.18 into 10 raised power 6 meters per second. तो हम n equal to 2 के लिए निकाल लेते हैं, this is velocity 2, v2 will be equal to 2.18 into 10 raised power 6 into what, into this z का वैल्यू क्या है वही 1, n का वैल्यू क्या है 2, that means this is 1/2. That is, in other words, हम कह सकते हैं velocity of the second orbit or velocity of electron in the second orbit of hydrogen atom is half of the velocity of electron in the first orbit. इस रिजल्ट को आप अच्छे से नोट करेंगे। चलिए हम थर्ड निकालते हैं। थर्ड, if n is equal to 3, this velocity 3 will be equal to 2.18 into 10 raised power 6 into z is same divided by this n, this will be 1/3. That means third velocity of the electron in third orbit will be 1/3 of the first orbit. तो ये भी आपका क्लियर हो गया। Now we'll apply this velocity formula to helium atom. हाँ हमें पता है हीलियम पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम हीलियम के इस आयन पे अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो इसका z जो है दैट इज 2। अगर हमारे पास n 1 है तो हमारे पास v क्या आने वाला है, v1 विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 इंटू z क्या है, दिस z क्या है, z इज 2 हियर, इंपॉर्टेंट। यहां नीचे n क्या है, n इज 1, दैट मीन्स दिस v1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस 2.18 into 10 raised power 6 meters by second. That means this v1 is twice the radius of, that means the radius of electron in first orbit of He plus is twice the radius of electron in the first orbit of the hydrogen atom. यहां से हम ये रब करेंगे ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, वहां आपके पास दिया होगा कुछ ऑर्बिट्स का, उनके स्पीशीज का वहां ऑर्बिट नंबर दिया होगा और आपको इसी तरह से बराबर z दिया होगा, n दिया होगा, तो आपको कंपेयर करना है किसका इस ऑर्बिट यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के साथ किसका कंपेयर सेम आएगा, हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की जितनी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो इनमें से किसकी होगी इतनी, तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं। आप बाकी स्पीशीज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है Li+ जो अभी हमने दिखाया आपको Li3+, या बेरिलियम के लिए भी आप कर सकते हैं, उसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है दिस इज ओवर फोर्थ वन, इसे भी हम यहां नोट करके रखते हैं। दिस v nth इज इक्वल टू e स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू z डिवाइड बाय n। चलिए नाउ विल टेक द एनर्जी। एनर्जी हमें पता है काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। चलिए पहले हम काइनेटिक एनर्जी का लेंगे। काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy as you know is due to the motion of electron. Electron is revolving around the nucleus, that means it must possess this kinetic energy. Kinetic energy क्या होता है, this is kinetic energy equal to 1/2 mv square. This kinetic energy will be equal to 1/2 mv का हमारे पास यहां पे एक्सप्रेशन है तो वो हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज e स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट, z हम यहां लिखेंगे, दिस इज n, इसका हमारे पास स्क्वायर है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू e रेज पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को हम बाहर निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये 1/8 आएगा यहां, दिस विल बी 1/8, 2 4 are 8, this is m, this is e raised power 4 divided by h square epsilon naught का स्क्वायर, here we have z square divided by n square। तो ये आपका कांस्टेंट बाहर आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की। तो हम लिख सकते हैं दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज है दे आर ऑल कांस्टेंट्स, इनके वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आता है 13.6। यू हैव टू मार्क अप दिस वैल्यू, 13.6 आएगा। दिस इज z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपका आता है यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां हम थर्ड फॉर्मूला अपनी नोट कर देते हैं। दिस काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल टू 1/8 दिस m e raised power 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। दिस इज our formula number 5th. Now we'll calculate the potential energy of electron। चलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। whenever two charges, say suppose this is q1, this is q2, they are separated by some distance say r, potential energy exists between these two charges। वो potential energy हमें किस तरह से मिलेगा? that potential energy will be equal to what? 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम आपको यह भी जरूरी देखना पड़ेगा कि चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो दिस इज द फॉर्मूला हमारे पास, लेकिन यहां न्यूक्लियस है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? एटॉमिक नंबर z इनटू द चार्ज ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन। ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया हुआ है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आप पहले वो लेक्चर देखिए फिर इस लेक्चर पे आप आइए। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो चार्जेस है इस फॉर्मूला के लिए यहां हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 हमारे पास क्या है? दिस ZE। Q2 हमारे पास क्या है? E, बट E इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, डिवाइडेड बाय R। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर, ये नेगेटिव हम यहां रखेंगे, डिवाइडेड बाय R। R क्या है? इस R का हम यहां से एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दैट, तो R क्या आएगा हमारे पास? दैट विल बी h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई e स्क्वायर m इनटू z। दिस इज R। तो पोटेंशियल एनर्जी विल कम आउट टू बी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर epsilon naught n square into this pi e square m into z। This potential energy will be equal to किसके बराबर होगा? चलिए जो चीज कैंसिल होगी वो हम कैंसिल करेंगे। दिस पाई विल कैंसिल विद दिस पाई। चलिए हम लिखेंगे बाकी दिस इज z स्क्वायर। तो हम पहले लिखते हैं e raised power 4, उसके बाद हम लिखेंगे m, उसके बाद हम लिखते हैं z स्क्वायर, z इंटू z विल बी z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट का हम स्क्वायर करेंगे। दिस इज एप्सिलॉन नॉट, हियर एप्सिलॉन नॉट, तो स्क्वायर करेंगे। दिस इज h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ओवर पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम इन कांस्टेंट को अलग लिखते हैं। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर होगा? e raised power 4, थोड़ा सा हम यहां जगह बना लेते हैं। दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? यहां से दिस इज e raised power 4 इंटू m इंटू z स्क्वायर। यहां से सारे कांस्टेंट्स हमारे अलग है ही। हम क्या करेंगे? ऊपर भी हम 2 से मल्टीपल करेंगे, नीचे भी हम 2 से मल्टीपल करेंगे। दिस इज माइनस हियर,
ऊपर भी 2 नीचे भी 2, जब ऊपर हम 2 से मल्टीपल करेंगे वो हम बाहर निकालेंगे, नीचे जो होगा वो 8 होगा, तो यहां से हम 8 करेंगे तो -2 ऐसे आएगा। दिस 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरह से आएगा। तो अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन के साथ जब आप कंपेयर करेंगे, E4 m 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, E4 भी है, m भी है, 8 भी है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी है, x स्क्वायर भी है, z स्क्वायर भी है, n स्क्वायर भी है, दिस इज सेम एज दैट, बट इट इज ट्वाइस पोटेंशियल एनर्जी। ट्वाइस पोटेंशियल एनर्जी है विद नेगेटिव साइन। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या आने वाला है, दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम शॉर्टकट में इसे लिखेंगे, इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज -2 इंटू this is 13.6 into z square divided by n square in electron volts। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू हमारे पास आने वाला है that is twice that of the kinetic energy with negative sign। ये नेगेटिव साइन क्या है आगे आपको अच्छे से ये क्लियर होगा। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला यहां पे नोट कर देते हैं। दिस इज e⁴ m डिवाइडेड बाय 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर into z square divided by n square. This is it। चलिए, now we'll calculate the total energy। total energy हम calculate करने लगेंगे। आप say this total energy is denoted by E। this E is equal to kinetic energy plus the potential energy। kinetic energy हमारे पास क्या है, that is 1/8 me4 divided by h square एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है -2 e⁴ m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। दिस इज इट। implies this E will be equal to what? It will be equal to, ये सारा यहां भी है तो ये हम कॉमन निकालेंगे। This is 1/8 m e⁴ divided by h square एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर z स्क्वायर n स्क्वायर इंटू 1, यहां का तो बचता 1 है, यहां से क्या बचता है, सारा ये बाहर आएगा तो -2। So we'll have E total will be equal to what? It will be equal to 1 प्लस -2 दैट इज -1, तो ये होगा -1/8 m e⁴ डिवाइडेड बाय h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। तो यहां ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ऑर्बिट। यहां किसी भी ऑर्बिट के लिए हम ये कर सकते हैं। दिस पार्ट इज, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनका वैल्यू क्या होगा, 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू आएगा nth ऑर्बिट के लिए -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर अगेन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये आपका वैल्यू आ रहा है टोटल एनर्जी के लिए। चलिए अब हम थोड़ा सा ये अप्लाई करते हैं एटम पे, देखते हैं कि ये एनर्जी किस तरह से होती है एक एटम में, डिफरेंट ऑर्बिट्स की किस तरह की एनर्जी होती है। ये मान लीजिए आपका एक न्यूक्लियस है, दिस इज ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, से दिस इज n = 1 जिसे हमने कहा था k। दिस इज ऑर्बिट नंबर सेकंड, सपोज दिस इज n = 2 जिसे हमने कहा था l। इसी तरह से मान लीजिए दिस इज ऑर्बिट नंबर थर्ड, दिस इज ऑर्बिट नंबर फोर्थ, राइट, दिस इज m, दिस इज n। अगर हम E1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, सपोज n = 1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे इफ हाइड्रोजन एटम के लिए हम शुरू करते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, z तो हमें पता है 1 है, इफ n = 1, E1 हमारा कितना आएगा, E1 will be equal to -13.6 into z is 1 divided by n square, that is 1 square, 13.6 ये आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वैल्यूज आप अच्छे से देखेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बताया था कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एनर्जी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पहले के लिए हमने कैलकुलेट किया। नाउ फॉर सेकंड, इफ दिस n = 2, दिस इज E2 equal to -13.6 into what, into this z स्क्वायर, वो तो वही आएगा हाइड्रोजन के लिए सेम, डिवाइड बाय n स्क्वायर दैट इज 4। तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
बट नेगेटिव, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए हम थर्ड के लिए कैलकुलेट करते हैं। थर्ड के लिए क्या है, हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 3, दिस E3 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी -13.6, z तो वही है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर क्या है, डिवाइडेड बाय 9, तो ये आप करेंगे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस विल बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसी तरह से अगर आप करेंगे n इक्वल टू 4 के लिए, दिस E4 विल बी इक्वल टू, दिस E4 विल बी इक्वल किसके बराबर होगा, 13.6 डिवाइडेड बाय 16, जब आप कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बट नेगेटिव। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पहले ये चीज भी समझ लेते हैं नेगेटिव क्यों है, और ये ध्यान से देखिए आप सीरीज कैसे आ रही है हमारी। नेगेटिव आप नोट कर दीजिए, नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव इसलिए है, दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस, दैट इज वाई दिस नेगेटिव वैल्यू इज हियर, ये आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दिस इज -13.6, then it is -3.4, that means it is increasing। नेगेटिव में तो छोटा ही बड़ा होता है, तो इसके मतलब हो गया इंक्रीजिंग ट्रेंड है। मैंने वहां से आपसे कहा था लेक्चर नंबर 4 में दैट E1 इज लेस देन दैट ऑफ E2 लेस देन दैट ऑफ E, ये ऑर्डर हमने देखा था वहां, E1 लेस देन, E2 लेस देन, E3 लेस देन, E4, हमने कहा था वी आर गोइंग टू प्रूव इट, यहां हमने ये प्रूव किया, दिस 13.6 इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, आप देखिए एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जितना हम दूर जाएंगे इस न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा एनर्जी जो है इंक्रीज होने लगेगी, और फाइनली ये एनर्जी होगी एट इंफिनिटी 0 के बराबर। तो 0 इज द हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि ये सारी एनर्जीज नेगेटिव है, तो 0 इनमें से हाईएस्ट होगा, तो दैट मीन्स इफ एनर्जी इज 0, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज नो मोर बाउंड टू द न्यूक्लियस। दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आप ये भी नोट करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट, ये हमने अब देखा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इसके हैं, तो ज्यादा हो रही है एनर्जी जब हम दिस फ्रॉम इनर टू आउटर जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट जो बोहर्स मॉडल का था, दैट वाज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर और आउटर टू इनर ऑर्बिट्स। तो कब ये आउटर ऑर्बिट से इनर आएंगे और इनर ऑर्बिट से आउटर आएंगे, वो जरा हम देख लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पे था, इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू दिस, इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू दिस, इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू दिस, yes, electron from this can jump to this also and it can jump to this also। यहां अगर है तो यहां से यहां भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो सकता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। लेकिन इसके लिए क्या कहा था हमने कहा था दैट देयर इज एनर्जी चेंज व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। तो यहां भी हम वही बात दोहरा रहे हैं, there will be energy change, either energy will be absorbed or energy will be released। ये आप इस लेक्चर में क्लियरली समझ लेंगे कि कब रिलीज होगा और कब एब्जॉर्ब होगा। देखिए यहां एनर्जी इसकी कम है, यहां ज्यादा है, दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, क्योंकि यहां इसकी एनर्जी ज्यादा होने वाली है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमने कहा था whenever electron it transits from inner to outer orbit, energy is absorbed। तो यहां भी वही होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। से सपोज हमने हाइड्रोजन एटम के लिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी सप्लाई की इन द फॉर्म ऑफ हीट, इतनी एनर्जी हमने सप्लाई की, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ट्रांजिशन के लिए। तो क्या होने वाला है, अगर इलेक्ट्रॉन दिस एनर्जी हमने सप्लाई की है, तो क्या ये हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिट होंगे, ये देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो है इट ऑकर्स ओनली व्हेन द एनर्जी अप्लाइड, इफ दिस एनर्जी अप्लाइड इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है, उतनी एनर्जी जब हम सप्लाई करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा। इस तरह से आप समझेंगे। देखिए बेटा, दिस इज 13.6, दिस इज हियर 3.4, सब सब्ट्रैक्ट कीजिए आप इन्हें, 10.2 आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आएगी। अगर आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करते हैं यहां, तो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल ट्रांजिट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। अगर आपने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई किया है, तो ये यहां से यहां नहीं आ सकता। अब कहेंगे आप सर 13.6
चलिए यहां नहीं आया तो यहां जा सकता है। आप इनका सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो भी ये आने वाला नहीं है, 15 आने वाला नहीं है, तो यहां भी नहीं जाने वाला। यहां से इनका सब्ट्रैक्शन कीजिए, वो भी आने वाला नहीं है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांजिट होगा जब एनर्जी उतनी होगी जितनी डिफरेंस है बिटवीन टू लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। बस ये ध्यान में आप रखेंगे। दैट मीन्स इफ यू आर सप्लाइंग दिस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी, ओनली दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रांजिट फ्रॉम दिस टू दिस। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो है वो डिपेंडेंट किस पे होता है? एनर्जी चेंज पे। किस एनर्जी चेंज पे? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ये ई फाइनल और ई इनिशियल पे होगा। बुक्स में आप देखेंगे E2 माइनस E1, ये बुक्स पे लिखा होता है। एनर्जी चेंज पे डिपेंडेंट होता है। जब आप उतनी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तभी ये ट्रांजिट होगा, अदरवाइज ट्रांजिट होने वाला नहीं है। ट्रांजिशन ओनली ऑकर्स व्हेन this energy supplied is equal to the difference between two energy levels. And this was all for today. In the next lecture, which is more interesting one, we have हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर्स मॉडल से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की काफी डिटेल्स मिली है। वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर दैट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अब आ रहे हैं, ध्यान से आप अच्छे से आप रिपीट लेक्चर्स को करेंगे। इस लेक्चर को भी आप रिपीट करेंगे 2 बार 3 बार आप रिव्यू करेंगे और अच्छे से नोट करेंगे और कॉपी पे आप नोट करेंगे और फिर इनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी करेंगे। एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स फाइनली। चलिए, गुड बाय।